Hello students, in the first video of unit 1 numericals, we have solved the numericals up to 32nd. Now we will move to the 33rd, so on, the numericals. Before that, I'm taking one more thing, the basic thing. One question I have sent to you that if we are introducing a dielectric in between the capacitors, when the battery remains attached or when battery remains detached, means without battery, right? So what is going on, what is happening? One thing is clear, that when you will introduce the dielectric in between, then the potential decreases here, right? In both the cases. You know why the potential decreases? No, when you're introducing here, the potential decreases means its capacity will increase, right? So both capacities in both the cases will increase, that is clear. Means it can take more charges. It can take more charges. Is there any source to give the charges? Yes, here is a source to give the charges. It can give the charges to it. But here is no more source. Potential is decreasing, but no more sources of charge. So one thing here is clear, that the potential is decreasing due to the introducing of dielectric, and this battery is providing more charges, and again the potential becomes same, right? कुछ इस तरह बेटा है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਕਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਬਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨਾ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ पोटेंशियल घटन की वजह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ पोटेंशियल जो है ये दोबारा उन्नी दे देगी, और बैटरी क्योंकि अटैच है तो नंबर एक चीज कांस्टेंट बैटरी के नाल V जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर? B ए कट नहीं देगी बैटरी, ये उन्नी ही कर देगी। इत्थे की है, इत्थे जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, और कोई सोर्स चार्ज का है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द कांस्टेंट थिंग्स। Clear it up. In the next part, you can say that capacity in both the cases is increasing. K, C naught. Here also capacity is K, C naught. तो दोनों केसेस में कैपेसिटी बढ़ रही है, बड़ी। इसकी भी कैपेसिटी और पानी ले सकता है, ये भी और पानी मतलब चार्ज ले सकता है, राइट? नो, इन अ थर्ड केस what is about a charge, है ना? अब और चार्ज यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। फार्मूला क्या is equal to CB. Now see, this capacity is actually known KC naught, and potential is constant. So this was the old charge C naught B. Now it is KC naught B now, meaning is charge जो है वो आपका इंक्रीज हो गया, है ना? चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ तो आपने ऑलरेडी कर रखा है भी, चार्ज तो कांस्टेंट रहने वाला है। हमने देखनी है पोटेंशियल्स, तो पोटेंशियल में ऑलरेडी बोल चुका, कम हो जाएगी। V इज इक्वल टू Q ओवर C। टू पैरामीटर्स वी हैव टेकन, है ना? Q इज कांस्टेंट हियर, एंड कैपेसिटी यू नो इट्स नो KC naught. दिस वाज द ओल्ड कैपेसिटी। सो हियर द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। समझा रहे बेटा? सबसे पहले हमने कांस्टेंट कांस्टेंट चीजें ले ली, कैपेसिटी बराबर हो गई, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करेगा, यहां तक तो सीधा ही था, और यहां पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, राइट? नाउ द फोर्थ वन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E नॉट ओवर K। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। एंड हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी द टू पैरामीटर्स आई हैव टेकन। E is equal to B over D. You know formula, E is equal to dB over dr. So V is here is actually now, you know,
जो पोटेंशियल है वो तो कम हुई है ना, जो पोटेंशियल है वो क्या हो गई है, कम हुई है ना। तो जैसे आप इसको लिख सकते हो B naught over K and this is D, so this is decreasing है ना। तो क्या हो गया यहां पे, फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉल हो गया, राइट। द फिफ्थ पॉइंट, लेट अस सी अबाउट एनर्जी। हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला हियर आई एम यूजिंग, कि एनर्जी जो है वो कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्योंकि अंदर कांस्टेंट है, ये पैरामीटर जो है C, ये KC0 बन रहा है, ये पुरानी कैपेसिटी है और K टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज होगी, फिर तो एनर्जी क्या हो गया K और पुरानी एनर्जी। एंड हियर इज द एनर्जी, आई विल यूज अ डिफरेंट फार्मूला, हाफ Q स्क्वायर ओवर C। आपको समझ आ रहा है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां Q सेम है और ये जो है ये अब आपके पास बेटा KC0 है, तो क्या हो गया एनर्जी, क्योंकि K टाइम्स कम हो गई। तो यहां तक समझ आ रहा है बेटा क्या हुआ। सो न्यूमेरिकल नंबर 33 आई एम टेकिंग। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जो बहुत सारे अगले न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला, मतलब बेसिक है। क्या किया है इस क्वेश्चन में, दिया है कि दो चार्जेस हैं, एक है 20 इंटू 10 की -6 एंड सेकेंड इज -4 इंटू 10 की -6 है ना, माइक्रो कूलम। They are at 50 centimeter apart. We have to find out that where in the middle or somewhere else in between these two charges, where the potential will be zero, right? So remember the superposition principle of potentials, that at a point, at any point, if number of charges are providing the potentials, then the total potential will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught sigma Qi over Ri है ना। What is I is 1 to n, जितने भी चार्जेस होंगे। क्या होता है, सिंपल एक चार्ज की वजह से फॉर्मूला था 1 over 4 pi epsilon naught Q over R, तो बहुत सारे की वजह से सिग्मा हो जाएगा, मीनिंग इज 1 over 4 pi epsilon naught I will take out the first charges and the distance of this from this observation point, right? We are considering that this point is P here, where the potential is 0 at distance x from this. Then I will write that this is a Q1, this is a Q2, so then Q1 over R1 plus Q2 over R2. Clear beta? So 1 over 4 pi epsilon naught, first charge, this is 20 into 10 की -6 and this distance, that is x, plus second charge -4 into 10 की power -6 and the distance this is 50 minus x. Clear? Remember, potential or potential energy, when you will calculate, you will put the sign of the charges there, है ना, आप उसके साथ रखोगे। So we are saying that at this point P the potential is 0, right? Then the common things, what are the commons, this and this is the commons, will come here and they can be taken, this side becomes 0, what will be left here, this is okay. Now take this here in this side, 20 over x, 4 over 50 minus x, then this way you will cut and cross multiply, so it becomes 250 minus 5x is equal to x, this can be taken here, 6 and 250, x 250 over 6 and 125, and that is 4 and 1 and something, you will find out this 41, and this is in centimeter because these were the centimeters, this is in centimeters, so you can convert it into meter this way. अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूं इस क्वेश्चन के बेटा, जो कि बहुत कॉमन होगा अगले न्यूमेरिकल्स के लिए। ये कहते हैं ये जो हमारा सिस्टम बना दो चार्जेस का, इस चार्जेस सिस्टम की एनर्जी कितनी है। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि दोनों को यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ा है, राइट। और वो फार्मूला आपके पास है, ध्यान रखना है फार्मूला क्या है। वो फार्मूला कहता है कि 1 over 4 pi epsilon naught सिग्मा
all pairs एंड क्यू जे क्यू के आर जे के। चलो यहां तो बहुत इजी है, दो ही चार्जेस हैं यहां, आगे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस होंगे, जैसे ये इसमें तो एक ही पेयर बन रहा है ना, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर देयर। सो दिस इज द फॉर्मूला, है ना, पोटेंशियल इज 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -4 इंटू 10⁻⁻6, -7 रखना है बेटा क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, सेंटी मीन्स दिस, ओके, एंड इट्स वैल्यू आल्सो यू नो 9 इंटू 10⁻9, and you will cut these values, that is your work, and its value will be 1.44 joules. Is it clear? In numerical number 34, it is given that 4 charges plus Q minus Q plus Q minus Q, they are at the vertices of a square which have a side D. Okay, all sides are D, 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 right? Question first they have asked that when they are brought here in this system in these positions but total work is done, किन्ना काम करना पिया होना इन्हां नूं इत्थे ले आउण नूं। सिंपल दी गल हुंदी है कि जिन्ना काम करना पिया वो इन्हां दी पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस सिस्टम दी भी ये सिस्टम इत्थे रखिया इहदे कोल किन्नी पोटेंशियल एनर्जी है। हुण पोटेंशियल एनर्जी कड्ढण दा एक सीधा दा तरीका है 1/4πε0 क्यू जे क्यू के आर जे के ऑल पेयर्स। क्यू जे क्यू के का मतलब की है कि सारे पेयर्स लिख लो, चार चार्जेस ने चारों पेयर्स लिख लो और उन्होंने डिस्टेंस लिख लो, राइट। जिमें मैं चार चार्ज लिखे Q1 Q2 Q3, कितने पेयर्स बन रहे हैं देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पेयर्स ने 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, यही पेयर्स ने ये लिखने हैं और इन्हों की डिस्टेंस लिख लेने की 1 और 2 के कितना डिस्टेंस सी, राइट। फिर 1 और इस तरह करके 3 का कितना सी, फिर 1 और 4 का कितना सी, फिर 2 और 3 का कितना, 2 और 4 का कितना, इस तरह करके। हुण देखो सानू उस लिए ये डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना, दिस डिस्टेंस, यू नो दिस इज डी, दिस इज डी, देन विद पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सी दिस इज डी √2, ओके। ये मैंने दसण की ज़्यादा लोड़ नहीं हैगी। टोटल वर्क डन कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिर्फ ये फार्मूला जो है इसको बहुत ध्यान नाल समझ लो, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बेटा। 1/4 सिग्मा ऑल पेयर्स क्यू जे के आर जे के, राइट। मतलब क्या है, चार चार्जेस ने इस तरह मैं लिखे हैं तो 1 2 लिखो, 1 और 2 ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज एंड इन द डिस्टेंस डी, प्लस समझा रहा, प्लस 2 और 3 चार्ज लिख लिया मैं बेटा। मैं की कर रहा हूं, जिन्हें डिस्टेंस जी डी है उन्होंने पहले लिखना, राइट। आ लिख ले और इन्हों की डिस्टेंस लिख ली, फिर आ लिख ले इन्हों की डिस्टेंस लिख ली, फिर आ लिख ले इन्हों की डिस्टेंस लिख ली, राइट। और 1 3 एंड 2 4 के बीच डिस्टेंस d/√2 है, ये अलग करके लिख ली, ठीक है। क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, सिंपल। नाउ सी हियर सिंपल, you can see in the notes I have sent. Now second part, they are saying that if I want to bring any charge Q0 here at the middle, then how much work will be done, extra कितना काम करना पैना है जब असी सेंटर इस चार्ज नू लेके आएंगे, राइट। वर्क दा फार्मूला है सीधा, वर्क इज Q into the potential at E, potential at E। इन्हां सारे चार्जां दी वजह दे नाल इत्थे कितनी पोटेंशियल है देखो, प्लस क्यू बराबर डिस्टेंस ते है, माइनस क्यू भी बराबर ते, ए भी बराबर ते, ए भी बराबर ते। प्लस क्यू इत्थे पोटेंशियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ए माइनस क्यू माइनस दी करेगा, बराबर करेगा, बराबर डिस्टेंसेस ने, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव कैंसल, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव कैंसल, मतलब इत्थे पोटेंशियल तो जीरो आ जानी है। जब पोटेंशियल जीरो हो गई तो एक्स्ट्रा वर्क कितना आएगा, Q0 इंटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज जीरो, तो जीरो हो जाना है। देखो तुम कट के देख सकते हो, Q0 सिग्मा पोटेंशियल करनी है 1/4πε0, है ना, सिग्मा एंड यू नो द फार्मूला QI/RI, ठीक है। Q0 1/4πε0, QI का मतलब क्या है, पहला चार्ज Q उदी डिस्टेंस ए d/√2 सी तो ए d/√2/2 बन गया, है ना। देन प्लस Q एक होर चार्ज है,
एक माइनस दा है, एक होर माइनस दा है। देखो इस प्लस ने इसने कर लिया, 0 हो गया सारा, और कोई वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना पिया, राइट। Now this is given that two charges 7 micro and minus 2 micro in a 35 question, they are kept at this position and this position. Minus 9 means from this is the minus 9 position, and here is the plus 9 centimeter. In centimeter they are given, means this total becomes 18 centimeter, right? So in a question, first part, they are asking about a potential energy. You know the formula again, that two charges are there, then simple formula 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R, है ना। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस 18 है ना, तो यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू लिखो एंड यू विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये नेगेटिव में आ जाएगी। समझा गया इतना सा। बी पार्ट, they are saying that if you want to separate them to infinite distance, है ना, आपने इनको क्या करना है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस कर देना है। अगर हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं किसी ए पोजीशन पे, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क कितना किया, तो वर्क बोलते हैं कि इन्फिनिटी टू ए लेके आए, तो क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन इज ए एंड इनिशियल इज इन्फिनिटी, तो इस तरह करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनको इन्फिनिटी पे लेके जाना है, राइट। तो हम बोलेंगे u, कोई वन पोजीशन से इन्फिनिटी को लेके जाना है, तो u इन्फिनिटी माइनस u1। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, यहाँ पोटेंशियल लिखी है मैंने, अगर चार्जेस हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, यू नो, है ना। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल, और बहुत बड़े चार्ज के लिए उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो इन्फिनिटी में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, 0, और इस पोजीशन पे कितनी है, अभी निकाली है। तो वर्क कितना करना पड़ा, पॉजिटिव में आया कि जो वर्क है वो इतना करना पड़ा है इन दोनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए। क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट पार्ट बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। ये कहते हैं कि अब आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी A/R² है। अब आपको कितना वर्क करना पड़ेगा अगर आपने इन चार्जेस को यहीं पे रखना होता। तो आपको एक बात पता है कि वर्क जो है अब आपका होगा, पहले तो सिंगल चार्ज लेके आएंगे, तो यहां पे जितनी पोटेंशियल बनेगी वो प्लस, दूसरा चार्ज जब लेके आओगे तो यहां कितनी बनेगी, प्लस इस चार्ज के अगेंस्ट। तो ये है ना, ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने भी निकाली ऊपर, ये एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, पोटेंशियल नहीं दे रखी यहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालनी है इन पोजीशंस पे, है ना। ये डिस्टेंस 0 है, समझा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस dB/dr, ठीक है। यहां देखो, इसको ऐसे लिख लें, माइनस dB एंड EdR, इसको माइनस को यहां लगा दें, इस डिफरेंशिएशन को उल्टा उधर ले जाएं, यू नो, इंटीग्रेशन +1 क्लास में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। So integration of E is A/R², this can be written R की बार -1, -2 in fact square, A will come out and R -2 + 1 -1, this way this becomes A/R simple। मतलब क्या है, इस डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनेगी इस पॉइंट पे, तो AR1 बनेगी कि यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से 9 सेंटीमीटर है, तो यहां 9 लिख दिया जाएगा, है ना, प्लस A/R2 एंड Q0 ऑब्वियसली, एंड दिस इज Q2। तो ये आपका आंसर है। देखो कि अब आप A की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है 9 × 10⁵ over R1, 9 सेंटीमीटर इंटू द चार्ज, दिस इज 7 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶, सेम 9 × 10⁵, A की वैल्यू, R2 अगेन सेम है, यहां से ये डिस्टेंस है ना, एंड